In the name of Allah, dear students, Assalamu alaikum. I am Mohammad Ashraf Bhatt, teacher, Government High School, Shanu. I am going to deliver English lecture for class 8th. You know that yesterday we have started poem reciting, and we have recited the two stanzas of this poem and Nation of Strength. It is in our syllabus. It is first poem, and I have already introduced, given it is information about the writer who writes this poem, Ralph Waldo Emerson, and have recited, explained two stanzas of this poem. Stanza first was, "What makes a nation's pillars high, and its foundation strong? What makes it mighty to defy the foes that around it throng?" And I have shown you on the whiteboard on Saturday that here is a rhyming scheme of this poem, that is ABAB. What does ABAB means? In first stanza of this poem, what makes a nation's pillars high and its foundation strong? What makes it mighty to defy the foes that round it throng? Means the first verse, last word, rhyming word high, it matches with defy. Means verse first it matches with the verse second is ABAB, and its foundation is strong. Strong's matching sound is strong. Like high's matching sound is defy, strong is throng. This is the scheme, ABAB, rhyming scheme, which has been used in this poem. And I have explained it that Ralph Waldo Emerson says that what is the quality or what are the conditions which make us strong, which makes a nation strong, or which by which the nation becomes more strong and can defy itself from its enemies who are trying to snatch its mighty power or defeat it. Then in second stanza, Ralph Waldo Emerson said that these are not the kingdoms, crown, are not gold, by which these nations become strong. And Ralph Waldo Emerson says in the second verse, if I say that these are any nation have the much gold, or any nation which wears king's wears the king's crown, they go down in the battlefield by the shock. It is shafts are laid on the sinking sand. If I say that these are the mightiest nations because they have much power, they have much wealth, they are not built on the stones, but they have built their nation's pillars on the sinking sand, not on the abiding rock. In any time, the nation which have pride on its wealth, which have pride on its power, mighty power, they can be sinking down because they consider they have laid down their pillars on the sinking sand, not on the abiding rock. یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں، رالف والڈو ایمرسن کہتے ہیں کہ ان کی بنیادیں جن قوموں کو، جن ملکوں کو اپنے دولت اور اپنی فوج یا اپنی طاقت پہ نشہ ہو کہ ہمارا ملک یا ہم باقی دوسرے قوموں سے بہتر ہے کیونکہ ہمارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، بہت ویلتھ ہے، ہمارے پاس فوج زیادہ ہے، بلکہ ان کی بنیادیں یہ اس مغرور پہ ہوتے، ان کی بنیادیں ایک ریت کے میدان میں انہوں نے اپنی اس قوم کی بنیاد بنا کے رکھی ہوتی ہے، جس طرح سے اس ریت کے میدان میں
पाँव रखने से पाँव फिसल जाते हैं, डूब जाते हैं, इसी तरह से वो भी उनकी बुनियादें, उनके कौम की वो बुनियादें बिल्कुल दबी जाती है रेत के मैदान में। इस तरह से हमने आज ये इसके बाद जो ये स्टैंजा है, स्टैंजा नंबर 3, यह आज हमने पढ़ना है। Is it the sword, asked the red dust? Is it the sword, asked the red dust, of empires passed away? The blood has turned their stones to rust, their glory to decay. And is it pride? That broad crown has seemed to nation sweet, but God has struck its luster down in ashes at his feet. In next stanza नंबर 3, रल्फ वाल्डो एमरसन कहते हैं, इज इट सवर्ड, ये हमें ये सवाल पूछता है यहाँ पे, क्या ये वो तलवार है? आस्क द रेड डस्ट, यानी रल्फ वाल्डो एमरसन को पूछने का ये मकसद है कि अगर कोई नेशन कहे कि हमारे पास फौज ज़्यादा है, हमारे पास तलवार है, यहाँ पे तलवार का मकसद ये है कि हमारे पास फौज ज़्यादा है, हम अपने आप को ये महफूज तस्वर करते हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ है क्योंकि हमारे पास फौज है। इज इट सवर्ड, क्या ये वो ताकत है, तलवार की ताकत है आपके पास? आस्क द रेड डस्ट, ज़रा उस सुर्ख, उस मिट्टी से पूछो, गरज से पूछो। ऑफ द एम्पायर्स पास्ड अवे, जिन्होंने, जिस मिट्टी ने वो शहनशाह दबाए हैं अपने नीचे, जो इस दुनिया पे कायम थे, जिनका दबदबा दुनिया पे था, उनसे पूछो उनका क्या हाल हुआ, वो चले गए इस दुनिया से, उनका क्या हशर हुआ। द ब्लड हैज टर्नड देयर स्टोन्स टू रस्ट, उनका वहां पे उनका खून इतना बहा कि उनके खून बहने से, जब वो उनका खून नीचे गिरते गया और उससे बिल्कुल जहां पे वो खून गिरा शिकस्त की हार में, तो वो उस खून से गिरते हुए उस खून से उन पत्थरों का रंग बिल्कुल वो जंग लग गए उन पत्थरों को, उनके खून से, देयर ग्लोरी टू डिके, और उनकी जो वो कामयाबी थी वो बिल्कुल जवाल पजीर, उसका वो जवाल के शिकार हो गई। मैं समझ रहा हूं कि आपने बिल्कुल समझ लिया होगा ये स्टैंजा, फिर मैं दोहराऊंगा। इज इट सवर्ड, रल्फ वाल्डो एमरसन आस्क्स क्वेश्चन इन द स्टैंजा, आस्क द रेड डस्ट, इज इट सवर्ड, क्या ये ताकत है, ये नशा है? जरा उस मिट्टी से पूछो, उस गरज से पूछो। ऑफ द एम्पायर्स पास्ड अवे, जो उस गुजरे हुए वो शहनशाह है, जिनका दुनिया पे दबदबा था, जिनका दुनिया में बिल्कुल, जिनको जोश था कि वो कहते थे कि हम ताकतवर है, जरा उनसे पूछो उनका क्या हशर हुआ। द ब्लड हैज टर्नड देयर स्टोन्स टू रस्ट, उनका खून इतना बहा उनकी नाकामी में, कि जब उनका खून गिरा तो बिल्कुल उस मिट्टी, उस जिस पे वो खून गिरा, वो पत्थर, वो उनको जंग लग गया उनकी खून की वजह से, देयर ग्लोरी टू डिके, और उनकी जो तरक्की थी, उनका जो ये था उरूज था, उसको जवाल आ गया, वो खत्म हो गई। एंड इज इट प्राइड, क्या ये वो उनको अपने आप पे गुरूर था? दैट ब्राइट क्राउन, वो उनके वो बादशाह वो चमके वो क्राउन पहन रहे थे, वो ताज पहन रहे थे, वो सोने के उनके वो कंगन पहने हुए थे, ताज उनके पहने हुए थे, क्या यही उन पे, उसी पे गुरूर था, फखर था, वो सोने चांदी पहने हुए थे। हैज सीम्ड टू द नेशन स्वीट, और जब उनके वो बादशाह निकलते थे तो वो कौम बिल्कुल फख्र कर रही थी, वो महसूस कर रही थी हम दुनिया में बिल्कुल हम दुनिया के उस बाकी कौमों में बेहतर है, क्योंकि हमारे पास सोना है, चांदी है, ये देखो हमारे बादशाह सोना पहने हुए हैं। बट गॉड हैज स्ट्रक इट्स लस्टर डाउन, मगर खुदा ने क्या किया उनके साथ? आप देखो उनका हशर, खुदा ने, अल्लाह ने उनकी वो जो ब्राइटनेस है, उनके वो जो उनका जो वो चमकेलापन था, जो वो पहने हुए थे कंगन, सोने के कंगन, उसने उसको खत्म किया,
in ashes at his feet. उसने अल्लाह ने उनको जवाल का शिकार किया, वो बिल्कुल उनके वो बिल्कुल रायगां हो गए. इन एशेस, बिल्कुल वो उसका क्या हो गया, वो ख़त्म हो गए अल्लाह के कदमों में. अल्लाह ने उनको जवाल का शिकार बनाया. अब राल्फ वाल्डो एमरसन in the next fourth stanza says, not gold but only men can make. ये सोना नहीं है बल्कि ये क्या है, only men can make, सिर्फ आदमी बना सकते हैं. A people great and strong, वो लोग मुल्क को, वो लोग कौम को मजबूत बना सकते हैं. ये सोने से ये कौम मजबूत नहीं बन सकती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मजबूत नहीं बन सकती है, बल्कि किस चीज़ से मजबूत बन सकती है, उनके पास पैसा हो तो पैसों से मजबूत नहीं बन सकती है. कोई कौम, कोई मुल्क अमीर तरीन हो तो हम सोचें कि ये मुल्क बिल्कुल ये मुल्क ज़्यादा तरक्की कर सकता है, नहीं, इससे नहीं होगा, बल्कि उन लोगों से होगा. किन लोगों से? अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, जो लोग मजबूत होंगे, जो बड़े लोग होंगे. Men who for truth and honor sake, जो लोग लड़ते हैं सच्चाई के लिए और अपने मुल्क की भका के लिए. Stand fast and suffer long, जो बिल्कुल खड़ा बहुत देर तक रहते हैं और जो सब्र बहुत देर तक करते हैं. Brave men, जिन लोगों को, जिनको हिम्मत हो, जो बहादुर हो. Who works while others sleep, जो काम करते हैं जबकि बाकी सोए हुए होते हैं. यह उन जवान मर्दों की बात चल रही है जो बिल्कुल अपने मुल्क की दिफा के लिए बिल्कुल जागे हुए होते हैं. उनकी आँख न बंद हो जाती है नींद की वजह से. बिल्कुल बाकी जो कौम होती है वो सोई हुई होती है, और इसके जो जवान मर्द लोग, जो हिम्मत वाले लोग होते हैं, करेज मैन होते हैं, जिनकी हिम्मत होती है, वो बिल्कुल जागी हुई होती है अपने मुल्क की दिफा करने के लिए. हु डियर्स व्हाइल अदर्स फ्लाई, जिनकी हिम्मत होती है वो फाइट करते हैं, जबकि बाकी जो लोग हैं वो डर जाते हैं, खौफ की वजह से भाग जाते हैं. दे बिल्ड ए नेशन एज पिलर्स डीप, यही लोग जो ये पेट्रोइट्स हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर मुल्क की दिफा के लिए लड़ते हैं, यही अपने मुल्क के जो ये पिलर्स हैं, इन बुनियादें हैं, ये बिल्कुल गहरी गाड़ देती हैं अपने मुल्क की ये बुनियादें. एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और अपने मुल्क को बिल्कुल तरक्की कराकर उसका नाम ऊंचा कर देते हैं. इस तरह से मैंने आज इस पोएम की मैंने ये रिसाइटेशन कंप्लीट की है. इंशाल्लाह टुमारो वी विल डू इट द एक्सरसाइज एंड द ग्लोसरी वर्किंग. इट इज़ एनफ फॉर टुडे. गुड बाय. मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.